Algebraic structure. A non-empty set G equipped with one or more binary operation is called algebraic structure. Binary operation means that operation when applied between two elements of any set give the result of the same set. Group. Group is an algebraic structure where four axioms are satisfied. Closure property. A operation B belongs to G for all AB belongs to G. Associativity A operation B operation C is equal to A operation B operation C for all ABC belongs to G. Existence of identity. That means such element when applied with any element of the set give the result as same element. That means E operation A is equal to A. E is the identity element. Existence of inverse. A inverse is the inverse element of A when applied with A give the identity element E. Abelian group. A group is called abelian if one more property that is called commutativity is satisfied. A operation B is equal to B operation A. That means if we change the order then no effect in the result for all A belongs to G. This is abelian property also when we change the order of two elements with any operation, then there is no effect in the result. When these five properties are satisfied, then group is called abelian group. I plus Q plus R plus, these are the examples where R is the set of real number, Q is set of rational number and I is the set of integer. Groupoid. An algebraic structure is called groupoid. Binary algebra or quasi group if binary operation O satisfy only one postulate. That means A operation B belongs to G for all AB belongs to G. N plus is groupoid because if we take any two natural number and apply plus operation between them, we get the result of natural number. Semigroup. An algebraic structure is called semigroup or demigroup if two properties are satisfied, that means closure and associative property. Monoid. A semigroup is called monoid if there is three property. That means closure, associative and identity property satisfy. Order of finite group. Number of element present in the group is called order of the group. General properties of group. Uniqueness of identity element. Identity element of the group is unique. If we consider two identity element E and E1, then E is equal to E1. If we consider E as identity element, then E into E1, E1 is equal to E1. And if we consider E1 is identity element, then E1 is equal to E. Left side of both equation are equal, that why right side also equal, E is equal to E1. Uniqueness of inverse is same as above. Now 1 minus 1 I minus I, these are called fourth root of unity. That means x to the power 1 by 4 or we can say x to the power 4 is equal to 1, then x is equal to 1 to the power 1 by 4. That means fourth root of unity. If we solve this equation, we get 4 roots 1 minus 1 I minus I. We apply multiplication operation. Then we see that 1 into 1 is equal to 1. 1 into minus 1 is equal to minus 1. 1 into I is equal to I. 1 into minus I is equal to minus I. These are the results. By the help of this table, we can easily see the result and check some properties, either closure property satisfy or not. This complete set contain 1 minus 1 I minus I. No any other element
of the set. That's why closure property satisfy. Here easily we can check associativity, identity. One is the identity element, and inverse property also satisfied. There are some element which are inverse of any other element. If one is the identity element, वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वन मिल रहा है, वन के साथ में. माइनस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको वन मिल रहा है, माइनस वन के साथ. आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको वन मिलता है, देखिए आई इंटू माइनस आई इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो इस तरीके से हर एलिमेंट का इन्वर्स हमको मिल रहा है, जिसके मल्टीप्लाई करके हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है. दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले फैक्टराइज कर लिया. सॉल्व करके हमको ये रूट्स मिलते हैं, इनको बोलते हैं ओमेगा. दिस इज ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. सेम हम टेबल के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से चेक कर सकते हैं. वन इंटू वन वन, वन इंटू ओमेगा ओमेगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर फोर. ओमेगा टू द पावर फोर को इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो. क्या रिजल्ट मिल रहा है, ओमेगा. हमको वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिलता है. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है क्योंकि सेट का ही रिजल्ट मिल रहा है. सिमिलरली हम एक आध एग्जाम्पल बता सकते हैं. एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती चली जाएगी. सेट के अंदर हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको वन मिल जाता है, तो एक को दूसरे का क्या बोलेंगे, इन्वर्स एलिमेंट बोलेंगे. कॉम्यूटेटिव भी होल्ड होता है, ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बता चुके हैं, ये सेम वही चीज़ है, सेम वही टेबल है जो अभी बताया था. प्रॉपर्टी का नेम लिख के एक एग्जाम्पल बता के भी आप बता सकते हो. अकॉर्डिंग टू द टेबल, टेबल से बाकी सारी चीज़ें चेक की जा सकती है. नाउ एडिशन मॉड्यूलो. एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, a प्लस बी व्हेन डिवाइडेड बाय m गिव द रिजल्ट r. 16 प्लस 7 23 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 are 23 is the remainder. This is called एडिशन मॉड्यूलो. अब प्लस को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दोगे तो हमको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो मिल जाएगा. ये एडिशन मॉड्यूलो के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, -21 प्लस 4 कितना हुआ, 17 डिवाइडेड बाय 3. -21 प्लस 4 17 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ पर. 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर कितना आएगा, 0. 5 प्लस 4 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 3. दिस इज एडिशन मॉड्यूलो. a इज इक्वल टू b mod m. a माइनस b when डिवाइडेड बाय m. a is congruent to b modulo m. a minus b divisible by m. 9 is equal to 4 modulo 5. 9 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा, 5. 5 को डिवाइड करता है. 18 माइनस 3 15. 15 को 5 डिवाइड कर देता है. 7 माइनस 5 7 0 हो गया. इसको 7 डिवाइड कर देता है. -20 में से आप 8 माइनस करोगे, -28. 7 4 ज़ा 28. 7 डिवाइड कर देता है. इस तरीके से ये डिफाइंड है. मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में प्लस के रिप्लेसमेंट में मल्टीप्लिकेशन आ जाता है. 7 इंटू 4 28 डिवाइडेड बाय 5 गिव 3 एज अ रिमाइंडर. 7 इंटू 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 7 1 एज रिमाइंडर. 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 4 गिव 1 एज अ रिमाइंडर. ठीक है, ये एक सेट है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4. आपको प्रूव करना है कि ये ग्रुप बनाता है, 4 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स. तो आप देख रहे हो कि आपने ऐड किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 0 रिमाइंडर. 0 प्लस 1 1,
4 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर, 0 + 2 2, 4 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर, इस तरीके से है ना। और आप चेक कर लीजिए 3 + 3 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एज अ रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, कोई भी एक एलिमेंट चेक करते हैं, 2 × 3 कितना हो गया, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2 एज अ रिमाइंडर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, किसी ग्रुप में एलिमेंट का पावर n करने पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इनको प्रिपेयर कर लेना। डेफिनीशंस, सब ग्रुप की क्या डेफिनीशन होगी, H is called subgroup if satisfy all the properties of group and also subset of G। ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। साइक्लिक ग्रुप क्या हो गया, अ ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ इट कैन जनरेट बाय एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, a to the power n बिलोंग्स टू i, एक ही अलग अलग पावर करके आपको ग्रुप के एलिमेंट मिलते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ, ये कहलाता है साइक्लिक ग्रुप, जिससे हम अलग अलग पावर चेंज करके सारे एलिमेंट को, ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। 1 to the power 1 करोगे 1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे आपको i और -i नहीं मिल सकता, तो 1 को जनरेटर नहीं लेंगे, दीज आर द जनरेटर ऑफ द ग्रुप। i है, i to the power 4 करोगे 1 आ जाएगा, i का स्क्वायर -1, i क्यूब करोगे -i, i2 है ना। इस तरीके से आपको एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। i to the power 1 करोगे तो i मिल जाएगा। इस तरीके से i से आप सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हो। तो i क्या कहलाएगा, जनरेटर ऑफ ग्रुप G, -i ऑल्सो जनरेटर ऑफ द ग्रुप G। आप चेक करना क्या क्या पावर करके सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, कोसेट किसको बोलते हैं, सब ग्रुप के साथ आप एक एलिमेंट को एसोसिएट मल्टीप्लाई करते हो HA, है ना, स्मॉल HA सच दैट H स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। लेग्रांज थ्योरम, अब लेग्रांज थ्योरम क्या है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर M of finite group of order n, consider the left decomposition। लेफ्ट कोई एक डिकम्पोजिशन ले लिया, लेफ्ट डिकम्पोजिशन मतलब लेफ्ट से आपने ए को मल्टीप्लाई किया, H क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट भी इसी तरीके से लेंगे, H1 H2 H3 को अपने कैपिटल H का एलिमेंट ले लिया तो AH क्या हो जाएगा, AH1 AH2 AH3 AHM, है ना, लेफ्ट कोसेट AHI इज इक्वल टू AHJ। इनका यूनियन करोगे लेफ्ट कोसेट का पूरा ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू M इंटू K, M इंटू K। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है, N है, तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M इंटू K। ठीक है, क्योंकि ईच कोसेट हैज़ m मेंबर, हर कोसेट में कितने मेंबर हैं, m मेंबर हैं, और ये कहाँ तक गया है, A1 A2 A3 से लेकर के AK तक गया है, तो K मल्टीप्लाई बाय M। ठीक है, इससे पूरा ग्रुप मिल जा रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल है। तो K कैसे मिलेगा, N डिवाइडेड बाय M करके आपको मिल जाता है K। ठीक है ना, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। ये लेग्रांज थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके देखो जरूर। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप GO and G'(O'), these are two group। ठीक है, f of A ऑपरेशन B इज इक्वल टू f of A ऑपरेशन डैश f of B।
मतलब हम अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, मैपिंग अप्लाई करते हैं, एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, तो एफ ऑफ ए ऑपरेशन भी क्या आ जाता है, एफ ऑफ ए ऑपरेशन डैश एफ ऑफ बी, दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन आ जाता है। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म इनटू, तो उसी तरीके से है ये डेफिनेशन भी, ये लिखी हुई है ना। होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, जब ऑन टू रहता है मैपिंग, ऑन टू में सारे एलिमेंट दूसरे सेट के कवर हो जाते हैं ची डैश के, और इनटू में कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं। मोनोमॉर्फिज्म क्या है, वन वन होमोमॉर्फिज्म, जब मैपिंग वन वन होती है, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होता है ना, ये है वन वन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म, a homomorphism G into itself is called endomorphism. Epimorphism, and onto homomorphism is called epimorphism. सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना। onto homomorphism क्या है, onto होने के साथ साथ homomorphism होता है ना। onto में दूसरे सेट के सारे एलिमेंट कवर होते हैं, कोई छूटता नहीं है, into में कुछ छूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते चले जाइए ये सब डेफिनीशन। अब आइसोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेशन डैश एफ ऑफ बी, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक है, वन वन ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए ये, ठीक है, तभी कहलाता है ये जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये एडिशन मॉड्यूलो 2 है, तो इनको आप ज़रूर से देख लो, एक एक बार डेफिनेशंस रीड कर लो, आरजीपीवी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उनको प्रिपेयर कर लो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पे। डेफिनेशन, इफ अ मैपिंग एफ ऑफ ग्रुप जी इज होमोमॉर्फिज्म इनटू इन ग्रुप जी डैश, देन द सेट के ऑफ ऑल दीज एलिमेंट ऑफ जी which are mapped onto identity E dash of G dash is called kernel of homomorphism। ठीक है, जिससे हमको दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाते हैं। पहले ग्रुप के वो सारे एलिमेंट जिन पे मैपिंग अप्लाई करने पे हमको दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, G इज इक्वल टू आई प्लस ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर विथ प्लस ऑपरेशन, एंड G डैश क्या है, वन माइनस वन आई माइनस आई, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विथ डॉट ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। F इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G डैश। ठीक है, आई टू द पावर n से डिफाइन है अपना फंक्शन। F ऑफ m प्लस n आपने लिया, प्लस ऑपरेशन लिया ना यहाँ वाला, तो ये हो जाएगा आई टू द पावर m प्लस n, दैट मीन्स आई टू द पावर m इंटू आई टू द पावर n। आई टू द पावर m का क्या मतलब होता है, एफ एम, और आई टू द पावर n का क्या मतलब होता है, एफ एन। ठीक, एफ एम और एफ एन। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेशन आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन आ गया। ठीक है, इसलिए देयरफॉर कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज द फॉलोइंग सेट, ये सब आएंगे, क्योंकि 4 के मल्टीपल जब रहते हैं तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। ठीक है, 4m, 4 का कोई मल्टीपल, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है, एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ G ऑन टू इटसेल्फ